हेलो एंड वेलकम। तो लास्ट क्लास में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था और साथ साथ हमने पढ़ा उनके अर्ली रिवोल्ट्स के बारे में। अभी हम लोग जो है उनके एडवेंचरस प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला एडवेंचरस प्रोजेक्ट था ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल 1326-27। First grand project conceived by Muhammad bin Tughlaq, who was to transfer his capital from Delhi to Devgiri, which was renamed Daulatabad. What was foremost in the mind of the Sultan when he thought of such a move cannot be ascertained from the contemporary sources. This is, however, a fact that Muhammad bin Tughlaq, while as Crown Prince Jona Khan, had formed close associations with the Deccan. He led two expeditions to Warangal, and after his hard-earned victory, annexed the Hindu kingdom to the Sultanate. But for the keen interest taken by Ghiasuddin Tughlaq and victory scored by Jona Khan, the whole of southern peninsula might have slipped out of the control of newly established Tughlaq dynasty. After his accession to the throne, Muhammad bin Tughlaq faced the first revolts at the hands of Bahauddin Gurshasp, the governor of Sagar, who had developed contacts with some Hindu feudal chiefs of Deccan. Sultan was constrained to shift his headquarters temporarily to Delhi to Devgiri to deal with the situation. A little carelessness or weakness on his part could have triggered off rebellions in other parts of peninsula. With this background in view, we can enumerate the plausible considerations which might have led Muhammad bin Tughlaq to transfer his capital to Daulatabad. The Sultan was a man of ideas who did not hesitate to break the old tradition and conventions in statecraft and civil administration. As a great visionary, he believed in the political unity of Indian subcontinent and desired to bring the entire country under the effective control of central authority. He wished the Sultanate to play the grandiose role as a unifying force. Delhi was situated far away from the south, which tempted the feudal chieftains and governors of the latter to defy the imperial authority. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पहला जो ग्रैंड प्रोजेक्ट था मोहम्मद बिन तुगलक का वो था कि उन्होंने दिल्ली से अपने कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया। दौलताबाद इज़ एक्चुअली देवगिरी का ही नाम बदल के दौलताबाद किया गया। और हमको प्रॉपर कंटेम्प्रेरी सोर्सेज से पता नहीं चल पाता कि ऐसा क्यों किया इन्होंने। बट हम लोग देखते हैं कि जब जौना खान या मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो क्राउन प्रिंस ही हुआ करते थे, तभी उन्होंने क्या किया है, उनका डेक्कन के साथ क्लोज एसोसिएशन रहा। उन्होंने वारंगल पर एक्सपीडिशन किया है 2 बार। हिंदू चिफ्टन से वहाँ पर जो है ना उनको उन्होंने जो है एनेक्स किया है। साथ साथ जो है उन्होंने जो है बहाउद्दीन गुरशास्प जो कि सागर के गवर्नर थे, उन्होंने भी डेक्कन में ही जो है उनके खिलाफ रिवोल्ट चालू कर दिया था, जिस वजह से उनको टेम्पररली देवगिरी में अपने कैपिटल को शिफ्ट भी करना पड़ा। ये सारी चीज़ों को माइंड में रखते हुए शायद मोहम्मद बिन तुगलक को ये नीड लगा हो कि दौलताबाद में वो बेटर एडमिनिस्ट्रेशन कर पाएंगे सदर्न किंगडम की। और वो एक्चुअली में इतना हेजिटेट नहीं करते थे, उनके पास नए आइडियाज़ आते थे, विज़न होता था और उनको लगता था कि पॉलिटिकल यूनिटी होना चाहिए इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। वो बस नॉर्थ में रहकर नहीं हो सकता है ना, या बस साउथ में रहकर नहीं हो सकता है। दिल्ली जो है वो साउथ से बहुत दूर था। वहाँ के फ्यूडल चीफ्टेंस और गवर्नर्स जो हैं वो आराम से इम्पीरियल ऑर्डर्स का जो है को डिफाई कर देते थे। उनका जो पहला एक्सपीडिशन था वारंगल एक्सपीडिशन 1321-22 में, वो फेल भी इसलिए हो गया था क्योंकि दिल्ली से कम्युनिकेशन को 2 सप्ताह के लिए जो है वो कट कर दिया गया था और र्यूमर्स फैल गया था लोगों के बीच में, जैसा हमने पिछले वीडियोस में करा था।
Muhammad bin Tughlaq did not want such a mishap to be repeated again. Since the conquest of southern India by Malik Kafur under Alauddin Khalji and the inflow of wealth lubricating the wheels of the Sultanate, the center of gravity of Indian politics had definitely shifted to the south. Muhammad bin Tughlaq attached greater importance in his southern possessions than the Punjab and Sindh, which had been ravaged by a century of Mongol inroads. मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो साउथ में पंजाब और सिंध से ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे। वो जो है जब से मलिक कफूर ने सदर्न इंडिया को कैप्चर करके रखा था तब से जो है दिल्ली सल्तनत का ख़जाना भरा होता था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो काफ़ी ईगर थे कि वो जो है गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस स्टोन्स, ये सारा जो साउथ से रिसोर्सेस मिलेगा उसको जो है सल्तनत की भलाई के लिए यूज़ कर पाए। While at Devgiri, he was fascinated with pleasant climate, rich agricultural product, and flourishing trade and commerce of Maharashtra, where his stay must have been much more comfortable than at Delhi by the hospitality of Maratha officials of the Sultanate. तो क्या हुआ ना कि जब ये देवगिरी गए तो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, वहाँ का ट्रेड एंड कॉमर्स सब एकदम कह सकते हो कि फर्स्ट क्लास था। इस वजह से क्या हुआ, और इनको जो है मराठास ने हॉस्पिटैलिटी भी बड़ी अच्छी की इनकी, तो इनका जो स्टे था वो काफ़ी कंफर्टेबल रहा देवगिरी में। बर्नी जो है वो ऑफर्स ओनली एक्सप्लेनेशन इन सपोर्ट ऑफ द सुल्तान्स प्रोजेक्ट ऑफ दौलताबाद हेल्ड अ सेंट्रल सिचुएशन। फिरिश्ता दो writing long afterwards makes an observation, the king was so much pleased with the situation and the strength of Devgur या फिर देवगिरी and considered it so much more centrical than Delhi that he determined to make it his capital. बर्नी कहते हैं कि दौलताबाद जो है वो सेंट्रल में था इसलिए, और फिरिश्ता कहते हैं कि देवगिरी जो है सुल्तान को दिल्ली से ज़्यादा ज़रूरी लगता था। वो इतना प्लीज्ड थे देवगिरी में जो भी सिचुएशंस थी उनको लेकर के। आगे, देवगिरी वॉज इन नो वे सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक्स एम्पायर। इट वॉज नॉट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न, ईस्टर्न एंड सदर्न बाउंड्रीज ऑफ द सल्तनत। If the Sultan attributed a central position to Devgiri, it could be justified only when he attached little importance to his dominance situated in east and northwest of Delhi. Of course, Delhi being located close to northwest frontier of India was frequently exposed to foreign invasions, whereas Devgiri was free from this menace. The latter enjoyed a more strategic location and could be defended better. We need not believe Ibn Battuta when he says that the Sultan wanted to punish the people of Delhi because they used to write anonymous letters full of abuse to him. Similarly, Isami's contention of the Sultan distrusted the people of Delhi and wanted to break the power of uprooting them from the hayats and home is not very rational unless we define the people to be nobility or aristocracy of the capital. The political environment of Delhi in the beginning of Muhammad bin Tughlaq's reign does not warrant such an inference. क्या होता है, देवगिरी जो है एक्चुअली में सेंट्रल में सिचुएटेड नहीं था, ठीक है, बट फिर यहाँ पर क्या था ना कि वहाँ पर एक बात थी कि जैसे ही सुल्तान बने मोहम्मद बिन तुगलक या उससे पहले जब क्राउन प्रिंस थे तो मंगोल अटैक हुआ। इन चीज़ों से देवगिरी फ्री था, तो देवगिरी को वो बेटर था, वो सिक्योर था, है ना, एज अ कैपिटल। पर हमें इब्न बतूता की बात को मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इब्न बतूता कहते हैं कि सुल्तान जो है वो दिल्ली के लोगों को पनिश करना चाहते थे, क्योंकि दिल्ली के लोग जो है अनाम से उनको लेटर लिखते थे, बिना नाम लिखे लेटर लिख देते थे, लेटर में गालियाँ होती थी। पर ऐसी बातें नहीं हैं। बस इतने से रीज़न के लिए सुल्तान जो है वो दिल्ली शिफ्ट से देवगिरी शिफ्ट नहीं करेंगे। ना ही इसामी की बात मानने लायक है कि दिल्ली के लोगों पर सुल्तान को ट्रस्ट नहीं था और इसीलिए जो है वो उनके साथ उन्होंने उनके साथ ऐसा किया। ये बातें जो है अगर वो दिल्ली के लोग की जगह पर दिल्ली की नोबेलिटी का बोलते तो समझ में आ सकता था कि नोबेलिटी हटा करके नई नोबेलिटी बताना
एक अलग बात है। पर ये सारी चीज़ें बिलीव के बाहर है कि वो लोगों से बदला लेने के लिए उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट था दिल्ली में जब मोहम्मद बिन तुगलक रेन में आए थे, वो बिल्कुल ऐसे बात पर, ऐसे कंक्लूजन पर पहुंचने में हमको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि हमने सुना, हमने पढ़ा इनिशियली कि जब मोहम्मद बिन तुगलक क्राउन प्रिंस बने और एक्चुअली किंग बने, जब उनका कोरोनेशन हुआ, तो हिंदू मुस्लिम हाई लो सब बहुत खुश थे। तो इब्न बतूता और इसामी की ये बात मानने वाली है नहीं। मॉडर्न हिस्टीरियोग्राफर ऑन द टेस्टिमनी ऑफ सियारुल औलिया opines that Sultan Muhammad bin Tughlaq intended to solve the Deccan problem by making Devgiri a center of Muslim culture through the plantation of a colony of Musalman there. He observes, one of the factors controlling the situation in Deccan was the scarcity of the Musalman, a fact which made it so tempting to the Hindu rulers to revolt, and so difficult for the emperor of Delhi immediately to control the situation from such a great distance. At the slightest outbreak of trouble in any part of Deccan, either a capable general had to send from Delhi or the emperor himself had to march in person. क्या कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मॉडर्न हिस्टीरियोग्राफी ये कहती है कि मोहम्मद बिन तुगलक डेक्कन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। डेक्कन में प्रॉब्लम क्या था, वहाँ पर हिंदू की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अब नॉर्थ में तो मुस्लिम्स बस भी गए थे, तो नॉर्दर्न लोगों ने धीरे धीरे जो है मुस्लिम रूल भी एक्सेप्ट कर लिया। बट साउथ में क्योंकि मुसलमान थे नहीं, तो वो लोग जो है हिंदू चीफ्टन्स जो है वहाँ पर जो है उसको मतलब अगेंस्ट हो जाते थे कि हमें मुस्लिम क्यों रूल करेगा, वैसा कुछ चल रहा था। और इस वजह से क्या होता था, अक्सर होते रहता था लड़ाई, और थोड़ा मोड़ा भी भिड़ंट होता था, फिर क्या हो जाता था कि दिल्ली से भेजना पड़ता था, एम्परर खुद जाते थे या कोई कैपेबल जनरल को भेजना पड़ता था कि वो मैटर को शांत करे। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि वो जो है वहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ मुसलमान जो है साउथ में, तो कुछ मुसलमान को वहाँ बसा दिया जाएगा, ताकि फिर जो है क्या हो जाए कि काइंड ऑफ वहाँ पर भी मुस्लिम्स प्रेजेंट होंगे, तो फिर ऐसी बातें जो है वो मोबिलाइज नहीं होगी कि वाया मुस्लिम इज़ रूलिंग और समथिंग लाइक दैट, और इस वजह से क्या होगा, रिवोल्ट्स बंद होंगे। आर्ग्यूमेंट डज नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन. It was no Hindu chief but a prominent Muslim noble, Bahauddin Gurshasp, who instead of championing the cause of Islamic unity on the behalf of Sultanate had raised the first standard of the revolt against Muhammad bin Tughlaq. पर ये जो कहा जाता है कि हिंदू के रिवोल्ट से बचने के लिए, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि कोई हिंदू चीफ ने मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं किया। बहाउद्दीन गुरशास्प जो कि खुद एक मुसलमान थे, उन्होंने रिवोल्ट किया। The feudal Hindu chief and ambitious Muslim nobles stood at par with one another in matter of defying the authority of autocratic police state that the Sultanate of Delhi was. Muhammad bin Tughlaq was not a communalist but an imperialist with a clearer vision that what was possessed by other sultans of Delhi. His failure as a ruler need not distract us from the real aims and objects that underlay his Deccan policy. The increase in numerical strength of Muslims and the spread of Islamic culture in the south was indirect result of his move, which was political in nature. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक कोई कम्युनलिस्ट नहीं थे, कट्टर नहीं थे, वो अपने धर्म को लेकर के रिलीजियसली फैनेटिक नहीं थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों ने जो है बराबरी से उनको डिफाई किया, उनके ऑर्डर को, या एक्चुअली में दिल्ली सल्तनत के ऑर्डर को, क्योंकि दिल्ली सल्तनत जो है वो एक ऑटोक्रेटिक पुलिस स्टेट बन रही थी। इनको आदत नहीं था, इनको रीजन्स में खेलने की आदत थी, तो ओवरऑल किसी एक सुपीरियर अथॉरिटी की बातें मानना नहीं पसंद था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक कोई कम्युनलिस्ट रूलर नहीं थे, वो इम्पीरियलिस्ट थे। वो अपना एम्पायर, अपना साम्राज्य तैयार करना चाहते थे। हाँ, ये साम्राज्य तैयार करने में क्या हुआ कि कुछ कमियां हो गई, कुछ फेलियर हो गए, और फाइनली जो है इसी प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एम्पायर, क्या हो गया कि साउथ में न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ मुस्लिम्स के बढ़े,
और इस्लामिक कल्चर भी साउथ में फैला। पर ये मोहम्मद बिन तुगलक के एडवेंचर का एक पार्ट नहीं था। एडवेंचर पॉलिटिकल था, बट उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो रिलीजियस भी हुए। Firishta has it on record that on proposing this subject to his minister, majority were of the opinion that Ujjain was more proper place for this purpose. As an autocratic, self-willed ruler, Muhammad bin Tughlaq brushed aside the advice of his minister and without carefully looking into the advantages and disadvantages on every side, decided to transfer capital to Daulatabad. No wonder he had to pay heavy price for having disregarded the advice of counselor. फिरिश्ता कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने ये कहा कि वो जो है दौलताबाद शिफ्ट करना चाह रहे हैं कैपिटल, वो थोड़ा प्रोटेक्टेड है मंगोल मेनेज से या फिर जो भी रीज़न है, तो उनके लोगों ने उनको एडवाइस किया कि आप उज्जैन शिफ्ट कर लो, वो ज़्यादा बेटर प्लेस है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक क्योंकि सेल्फ विल्ड रूलर थे, सर्वे सर्वा थे, अपना ही करते थे, तो उन्होंने इन सलाह पर ध्यान नहीं दिया और बिना ही एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस प्रोज कॉन्स को देखे उन्होंने जो है कैपिटल को दौलताबाद शिफ्ट कर दिया और इसकी भरपाई उनको बाद में करनी भी पड़ी। Exodus to Daulatabad took place in two phases. At first, imperial court and establishment shifted to new capital. The nobles moved but grudgingly, while the cream of aristocracy comprising Sayyids, Sheikh, ulema, trader, businessmen showed disinclination to vacate the historic city of Delhi, which was 170 or 180 years had grown in prosperity, rivaled Baghdad and Cairo. This enraged the Sultan, who issued orders for the general migration of aristocracy of Delhi to Daulatabad. The incident took place about a year after the first phase of migration. तो क्या हुआ कि एक्सोडस जो हुआ दिल्ली से लोगों को दौलताबाद जो शिफ्ट किया गया, ये दो फेज़ में हुआ। पहले फेज़ में क्या हुआ कि इम्पीरियल कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट को शिफ्ट किया गया नए कैपिटल में। नोबेल्स जो है वो भी गए, बट ग्रजिंगली गए, क्योंकि उनको लगता था जैसे कि एरिस्टोक्रेसी के जो क्रीम थे, जैसे सैयद, शेख, उलेमा, ट्रेडर, इनका अच्छा खासा चलता था। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये दिल्ली को छोड़कर जाएं, क्योंकि दिल्ली जो है वो 170-80 साल में इतना ग्रो कर गया था, इतना प्रॉस्पेरस, इतना संपन्न हो गया था कि वो बगदाद और कायरो की बराबरी कर रहा था। तो इसलिए ये लोग दिल्ली को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। पर सुल्तान गुस्सा हो गए और उन्होंने जो है कहा कि सारी की सारी, पहले जो है वो डिसाइडेड था कि किनको शिफ्ट करना है, लेकिन फिर उन्होंने कहा नहीं, सारी की सारी एरिस्टोक्रेसी को दौलताबाद जाना है। ये इंसिडेंट कब हुआ? ये इंसिडेंट जो है फर्स्ट फेज़ ऑफ माइग्रेशन के 1 साल बाद हुआ। मतलब जब कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट शिफ्ट हो गए उसके 1 साल बाद जो है जनरल माइग्रेशन हुई एरिस्टोक्रेसी की। Isami says that 6 caravans were composed of the people who were forced to move to Deccan against their will. The step was deeply resented by the aristocracy and made the Sultan an object of hatred and despise by all and sundry. It was not, however, a mass migration of the populace of Delhi. The Hindu in general were not affected by it, nor were the Muslim masses compelled to take road to south. जैसा हम लोग बहुत सारे अलग अलग सोर्स में पढ़ते हैं कि पूरी जनता को लेकर के ये दिल्ली से दौलताबाद चले गए, ये नहीं हुआ था। तो इसामी कहते हैं कि 6 कारावान में लोगों को जो है एरिस्टोक्रेसी को मूव किया गया, बट ये स्टेप एक्चुअली में एरिस्टोक्रेसी के लिए थी। पॉपुलेशन जो है, मास पॉपुलेशन हिंदू और मुस्लिम्स की, वो अफेक्ट नहीं हुई थी। उनको ज़बरदस्ती कंपेल नहीं किया गया था साउथ जाने के लिए। इट वॉज इसेंशियली द अपर क्लास ऑफ दिल्ली हु फेल अ विक्टिम टू द विम्स ऑफ द डेस्पोटिक रूलर। दे वेर अपरूटेड फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल लैंड, many of whom suffered great hardship and some were actually ruined. Coercion was employed against those who disobeyed the Sultan's order. Some were mercilessly dragged out of their homes and punished. However, the harrowing
tales of mass migration as narrated by Barni, Ibn Battuta and Isami etc. are not literally correct. पर कहा जाता है कि जो बर्नी इब्न बतूता या इसामी ने जो टेरिफाइंग कहानियाँ बना के रखी है कि मास माइग्रेशन कैसा हुआ, कितना भयानक था, वो सही नहीं है, वो गलत है. These became current among the people as an expression of the sentiment of resentment and disgust against the high-handed action of Sultan. और ये सारी बातें फैलाई जो गई तो लोग जो हैं वो और ज़्यादा सुल्तान के विरुद्ध हो गए. City of Delhi was not evacuated completely, albeit on being deprived of its royal patrons and aristocracy, it lost its formal pomp, grandeur and prosperity. दिल्ली के सिटी को पूरी तरह से खाली नहीं किया गया था, पर रॉयल पैट्रन्स, एरिस्टोक्रेसी, इन सबको जो है साउथ में मूव करवा दिया गया, जिस वजह से दिल्ली की जो पुरानी शोहरत थी, पुरानी संपन्नता थी, वो ख़त्म हो गई. Once the decision had been taken, the Sultan made elaborate arrangements to execute the plan. The 700-mile long trunk road, Shahrah, between Delhi and Devgiri had already been well developed since the days of Alauddin Khalji. Halting camps were set up all along the route for the stay of emigrants, where free food, drinking water and other amenities were made available for them. Efficient postal and intelligence service was established, and state troops posted en route to Daulatabad to protect the life and property of the travelers. Ibn Battuta reveals that Sultan had purchased all the houses and dwellings of those who were asked to shift to the south. They were provided free board and lodging on the arrival in Daulatabad and granted free land and other facilities for the construction of their houses and business concerns. Barni has it that Sultan was bounteous in his liberality and favors to the immigrants both on their journey and on their arrival to Daulatabad. Notwithstanding all that Sultan had done to help the immigrants, they suffered tremendously from severe mental strain, privation and fatigue. क्या कहा जा रहा है कि एक बार जब डिसीज़न लिया तो ऐसा नहीं है कि इसको प्लान नहीं किया गया. शाहराह करके एक बहुत ही अच्छे से रोड बना हुआ था, लॉन्ग रोड, जो दिल्ली को दौलताबाद से कनेक्ट करता था, और ये अलाउद्दीन खलजी के ही समय से बना हुआ था. इस रोड पर कैंप्स लगाए गए कि इमिग्रेंट्स जो आएंगे जाएंगे उनको फ्री फूड, पानी, ये सब दिया गया और बाकी ज़रूरत की चीज़ें भी दी गई. पोस्टल सिस्टम बनाया गया, इंटेलिजेंस सर्विस बनाया गया, स्टेट ट्रूप्स को लगाया गया रास्तों में, ताकि लाइफ और प्रॉपर्टी ट्रैवलर्स की बची रहे. इब्न बतूता कहते हैं कि दिल्ली में हर किसी का घर जो भी शिफ्ट कर रहे थे दौलताबाद में, सुल्तान ने खरीद के बदले में जो भी पेमेंट होता था वो उनको किया, और साथ साथ फ्री बोर्ड और लॉजिंग भी दिया जब वो दौलताबाद गए, और कंस्ट्रक्शन वगैरह में हेल्प भी किया. बर्नी कहते हैं कि सुल्तान ने बहुत ज़्यादा फेवर्स किए एमिग्रेंट्स को जिन्होंने दौलताबाद जो भी पहुँचे. एक्चुअली में फिर लोगों को प्रॉब्लम क्या हुई, वो मेंटली सफ़र कर रहे थे, वो थक गए थे, लॉन्ग जर्नी थी. दौलताबाद डिड नॉट प्रूव एन आइडियल कैपिटल फॉर द वास्ट टर्किश एम्पायर ऑफ इंडिया. दिल्ली वॉज एन इम्पीरियल कैपिटल, डिड नॉट हैव सम शॉर्टकमिंग्स, and the original idea of locating a more centrally situated headquarter was not illogical, albeit the choice of Devgiri was wrong. It did not fulfill the requirements which necessitated this change. Being situated far away from the northwestern frontier in Bengal, it could not serve as an adequate base for the establishment of effective control over northwestern and eastern India. To his great chagrin, Muhammad bin Tughlaq had to move like a shuttlecock between Delhi and Daulatabad to solve the various administrative and political problems. तो दौलताबाद जो है वो एक आइडियल एक्सपीडिशन नहीं रहा,
क्योंकि टर्किश एम्पायर काफ़ी लार्ज था। दिल्ली जो है वो एक इम्पीरियल कैपिटल था और दिल्ली में लेकिन कुछ कुछ कमियां थी। ओरिजिनल आइडिया क्या था कि एक सेंटर प्लेस लेना है, तो ये इलॉजिकल आइडिया नहीं था कि एम्पायर को सेंटर से मैनेज करना है, क्योंकि दिल्ली भी सेंटर में नहीं थी एम्पायर के। बट देवगिरी का चॉइस गलत था। देवगिरी को जो चूज़ किया, तो जो कारण थे जिस वजह से सेंट्रल कैपिटल चाहिए था, देवगिरी भी नहीं फुलफ़िल कर पाई, क्योंकि ये भी सेंटर में नहीं थी। फार साउथ में सिचुएटेड थी देवगिरी, इस वजह से जो है नॉर्थ वेस्ट और बंगाल से कंट्रोल छूट रहा था। और मोहम्मद बिन तुगलक को जो है वो कभी दिल्ली, कभी दौलताबाद, कभी दिल्ली, कभी दौलताबाद करते रहना पड़ा। Historical importance of Delhi could not be reduced by an executive action alone. Delhi was associated with the foundation of the Sultanate and had enjoyed reputation as its metropolis throughout the Muslim world for over 2 centuries. Muhammad bin Tughlaq realized this bitter truth only after he had shifted to Daulatabad. Moreover, in spite of the liberal patronage extended by the Sultan to the emigrants, many of them did not feel at home in the south. Emotional and sentimental attachment with Delhi could not be cut off. They felt themselves as strangers in the infidel land and continued to grumble against the Sultan, who had lost their confidence and goodwill. They came to constitute permanently disgruntled and disaffected lot who did not cooperate with the Sultan willingly and sincerely in the management of state affairs. It had adverse effect on administration and gave serious setback to the dignity and prestige of Sultan. Within 2 to 3 years, Muhammad bin Tughlaq realized his folly and brought back the imperial court to Delhi without any fanfare. General permission was granted to the emigrants to come back to Delhi in 1335-36, but much before that stage, Delhi had already become the hub of political and socio-cultural activities of the Sultanate once again. Ibn Battuta, who came to Delhi in 1334, found it fairly flourishing condition. तो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस जो दिल्ली की थी, उसको बस एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से ख़त्म नहीं किया जा सकता था। दिल्ली जो है वो बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड थी मुस्लिम वर्ल्ड में, क्योंकि 200 साल से जो है सल्तनत का स्टैब्लिशमेंट और रूलर्स ने वहीं पे रूल किया। मोहम्मद बिन तुगलक को ये बात पता चली बस तब जब वो दौलताबाद जा चुके थे। लिबरल पैट्रोनेज जो दिल्ली को सुल्तान ने दिए थे, उससे क्या हुआ कि वापस से जब इमिग्रेंट्स जो दौलताबाद शिफ्ट कर गए, तो उनको तो साउथ में मन ही नहीं लगने लगा, क्योंकि उनके इमोशनल अटैचमेंट्स थे दिल्ली के साथ। वो जो है उनको वो बिल्कुल उखड़े उखड़े रहते थे और सुल्तान के बारे में भी अब अच्छा नहीं सोचते थे। वो जो है परमानेंटली सुल्तान से जो है अनविलिंग रह गए, सुल्तान के साथ जो है कोऑपरेट करना उन्होंने परमानेंटली बंद कर दिया। अपनी चाह से वो कोऑपरेट नहीं करने लगे सुल्तान के साथ। एडवर्स इफ़ेक्ट हुआ इसका एडमिनिस्ट्रेशन में, सीरियस सेटबैक हुआ और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को 2 से 3 साल के अंदर अपनी बेवकूफ़ी का अंदाज़ा हुआ और उन्होंने जो है बिना कुछ शो और गैलर के वो उन्होंने जो है जनरल परमिशन दे दिया कि दिल्ली वापस आ जाओ। लेकिन उनके ये परमिशन देने से पहले भी दिल्ली फ्लरिश ही कर रही थी, क्योंकि इब्न बतूता उन्होंने 1335-36 में ये परमिशन दिया, लेकिन 1334 में इब्न बतूता दिल्ली आए और उन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि दिल्ली काफ़ी फ्लरिश कर रही थी। अब्बास, द ऑथर ऑफ मसालिक उल अबसर, an Arabic work compiled about a decade after the so-called evaluation and destruction of Delhi, mentions that the Sultanate of Delhi had 2 capitals, Delhi and Devgiri, or Quwwatul Islam, the metropolis of Islam. The 2 cities were connected with each other by a broad and well-maintained highway. All along the route, the Sultan had placed huge beating drums at hundreds of posting stations situated at short distances from each other.
Whenever something special happened in a city or when the gates of the capital where the Sultan was not present were opened in the morning and closed at night, the drums were beaten in rapid succession from posting station to posting station. In this manner, Sultan came to know every day the time of the opening and closing of the gates of the capital, lying at a distance of about 700 miles from his place of residence. Similarly, the recent discovery of a couple of coins minted almost simultaneously at Delhi and Daulatabad carry the inscriptions on them as Takhtega-e Delhi and Takhtega-e Daulatabad respectively. Such being the case, we have reasons to believe that the unprecedented project conceived by Muhammad bin Tughlaq was not scrapped altogether. Original plan misfired and was universally condemned by the people, essentially because its dictatorial implementation. The Sultan crippled a wise project by its hastily implementation and use of brute force, therefore. Notwithstanding the personal and autocratic element which constituted but a part of general nature of medieval Indian monarchical hierarchy, the importance of Daulatabad as the second headquarter of empire was confirmed by the experience. An original plan was modified to suit the exigencies of the time. The ancient Indian monarchs did not have more than one capital to control their vast Indian dominance. Considered from this angle, Muhammad bin Tughlaq made a great contribution to the concept of medieval Indian polity and anticipated the British, who started with Calcutta as the capital, situated on the eastern fringe of the country, and subsequently developed Simla to be the second headquarter of the Indian Empire. तो क्या कहा जा रहा है, अब्बास जो कि मसालिक उल अबसर के राइटर हैं वो कहते हैं कि दिल्ली के डिस्ट्रक्शन और इवैक्यूएशन इन सब पर उन्होंने लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दो कैपिटल था, दिल्ली और देवगिरी, और एक हाईवे मेंटेन्ड था बहुत अच्छे से, और प्रॉपर कनेक्शंस मेंटेन्ड था, कम्युनिकेशंस मेंटेन्ड थी। जब भी कुछ सिटी में होता था तो गेट्स ऑफ द कैपिटल से ड्रम बजते थे और फिर अलग एक पोस्टिंग स्टेशन को पता चला तो दूसरे पोस्टिंग स्टेशन में ड्रम बज रहे हैं, और ऐसे करके कम्युनिकेशन भी पता चल जाती थी। इस मैनर में सुल्तान को पता चल जाता था हर दिन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गेट्स ऑफ कैपिटल लाइंग एट अ डिस्टेंस, जो दूसरा कैपिटल है दिल्ली या फिर देवगिरी में जब रहे तो देवगिरी में, तो उनको पता चल जाता था कि गेट कब खुला कब बंद हुआ, क्योंकि गेट खुलने और बंद होने में ड्रम बजाए जाते थे और पोस्टिंग स्टेशन से दूसरे पोस्टिंग स्टेशन, उससे दूसरे पोस्टिंग स्टेशन, ऐसे जो है सुल्तान दिल्ली में रहकर दौलताबाद के ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द गेट को जान लेते थे या दौलताबाद में रहकर दिल्ली के ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द गेट को जान लेते थे। सुल्तान जो है उन्होंने साथ साथ जो है हमें बहुत सारे सिक्के मिले हैं, कपल ऑफ कॉइन्स मिले जिसमें कि तख्तेगा दिल्ली और तख्तेगा दौलताबाद लिखा हुआ है, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि दौलताबाद को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया गया एज अ कैपिटल, बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली और दौलताबाद दोनों में कैपिटल को मेंटेन किया। हाँ, ओरिजिनल प्लान था कि दौलताबाद में कैपिटल शिफ्ट कर जाए, बट जब दिल्ली के लिए लोग लॉन्ग करने लगे और दिल्ली की भी इम्पोर्टेंस सुल्तान को समझ में आई तो दिल्ली और दौलताबाद दोनों को कैपिटल बनाया गया, जो कि एंशंट इंडिया में हमें नहीं देखने को मिलता है। एंशंट इंडिया में किसी भी मोनार्क के एक से ज़्यादा कैपिटल नहीं थे, और मोहम्मद बिन तुगलक ने ये कंट्रीब्यूशन दिया, नया कॉन्सेप्ट दिया मेडिवल इंडियन पॉलिटी को कि दो कैपिटल भी हो सकते हैं, जो बाद में ब्रिटिश ने भी फॉलो किया। स्टार्टिंग में वो जो है ईस्टर्न कोने में इंडिया के कैलकटा में उन्होंने कैपिटल बनाया, फिर उनको लगा कि और भी कहीं होना चाहिए तो शिमला में उन्होंने अपना सेकेंड हेडक्वार्टर बनाया। इमीडिएट अफेक्ट of Muhammad bin Tughlaq transfer of capital was disastrous. It reduced the prestige and prosperity of Delhi, though for a short while. Aristocracy of Delhi were uprooted from the hearths and homes, and many of them were put to great inconvenience. Execution of plan must have been a tremendous strain on the administrative machinery as well as state treasury. Sultan lost in estimation of the people and could never win back the confidence all his life. The bad execution of the project therefore resulted in the greatest personal loss to the Sultan. The long-range effect of this experiment proved, however, to be marvelous.
The socio-cultural barriers between North and South were broken. A large number of Muslims elite migrated to South and made permanent settlement there. They received lucrative government assignments, free land, estates, and gradually came to acquire a dominant position among the aristocracy of the Deccan. The propagation of Islam among the natives received impetus, and population of Muslims beyond the Vindhyas increased considerably. Thus, the Deccan became a strong hold of Muslims. Whether Muhammad bin Tughlaq had originally conceived it or not, he became indirectly responsible for plantation of Muslim faith and Islamic culture in South. It would not be wrong to say that Alauddin Khalji had carried the Muslim arms to the south, whereas Muhammad bin Tughlaq installed the banner of Islamic religion and culture there. The initial project of the Sultan failed, and in its long run, he had lost his hold over his southern dominance as well. But the Deccan continued to be the stronghold of Muslim power. It led to the birth of Bahmani kingdom. क्या कहा जा रहा है कि इमीडिएट इफेक्ट क्या हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल का डिज़ास्ट्रस, बट लॉन्ग रन इफेक्ट बहुत अच्छा हुआ. इमीडिएटली एरिस्टोक्रेसी को सफ़र करना पड़ा, इनकन्वीनियंस हुआ, बट लॉन्ग रन में इमीडिएटली क्या हुआ, स्टेट के खर्चे हुए, लेकिन लॉन्ग रन में क्या हुआ, इसके कुछ अच्छे भी चीज़ें हुई. क्या हुआ, अच्छी चीज़ें क्या हुई, सोशो कल्चरल बैरियर. नॉर्थ और साउथ का सोसाइटी डिफरेंट है, नॉर्थ और साउथ की कल्चर डिफरेंट है. ये जो बैरियर है, ये जो एक अनकहा दीवार है, इसको इन्होंने थोड़ा तोड़ने की कोशिश की. बहुत सारे मुस्लिम एलाइट जो हैं वो साउथ जो जिन्होंने माइग्रेट किया वो वहाँ पे परमानेंटली सेटल हो गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है फ्री लैंड, स्टेट्स ये सब दिया हुआ था, और बाद में जो है साउथ की एरिस्टोक्रेसी का एक पार्ट बन गए. ये कहना गलत नहीं होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने भले ही प्लान नहीं किया हो, बट वो रिस्पॉन्सिबल थे मुस्लिम फेथ और इस्लामिक कल्चर को साउथ में पहुंचाने के लिए. अलाउद्दीन खलजी ने जो है मुस्लिम आर्म्स है ना, आर्मी भेज करके साउथ को जीता, बट मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है रिलीजन और कल्चर वहाँ पर फैलाया, इस्लाम का बैनर लगाया. बाद में क्या होता है कि ये जो डेक्कन है जो है वहाँ पर मुस्लिम का स्ट्रॉन्ग होल्ड कंटिन्यू होता है, और फिर इन्हीं स्ट्रॉन्ग होल्ड का रीज़न होता है कि इमर्जेस अ न्यू एम्पायर बहमनी किंगडम इन द साउथ. सो दिस इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल, उसका एस्टिमेशन कंप्लीट. एंड कल हम लोग जो है इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू द टोकन करेंसी, जो कि अनदर एडवेंचरस स्टेप है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.